Hello students, I welcome you to the sessions of today. ଆଜି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର এটা ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଏବଂ এই ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 11 ଓ 12 ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଟ୍ 11 ୟୁନିଟ୍ 11ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ନ୍ୟୁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କିନସିପ୍। ଏଥିରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ କେମିତି ଏହା ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାତୃତ୍ୱ, ପିତୃତ୍ୱ ଓ ଅଭିଭାବକତ୍ୱକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଥିରେ ସେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଫଳରେ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱର ଜୈବିକ ଓ ସାମାଜିକ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହେଇଛି ଏହା ମାନବ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏବେ ଜନ୍ମ କେବଳ ଏକ ଜୈବିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଘଟଣା, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏହା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜ୍ଞାତି ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ମାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଓ ଜ୍ଞାତିରେ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟାର ଧାରଣା Understanding new reproductive in kinship studies। କିନସିପ୍ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବା ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଜୈବିକ ଗର୍ଭଧାରଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଆଶାର କିରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜୈବିକ ଗର୍ଭଧାରଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବରଦାନ। ଉଦାହରଣ, ପ୍ରଜନନ ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପଯୋଗୀ। ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନ୍ୟୁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେବଳ ବଂଶ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଏହାର ଗ୍ରହଣୀୟ
ଏକ ବା ସମାନ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସମାଜରେ ଏ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମାଜରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ, କେତେକ ସମାଜରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମାଜର ଏକ ବୈଧ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସନ୍ତାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଠୋର ସଂହିତା ଓ ଗର୍ଭଧାନର ରୀତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହାର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କାରଣ ଜଣେ ବୈଧ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସଂହତି ଅଛି, କୋଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗର୍ଭଧାନର ଯେଉଁ ରୀତି ଅଛି ତାହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କେତେକ ସମାଜରେ କେବଳ ଜୈବିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଜନନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଏନ୍ଆର୍ଟି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ନଥିବା ଦମ୍ପତି, ସମଲୈଙ୍ଗିକ ଦମ୍ପତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତୃତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଆର୍ଟି ବା ନ୍ୟୁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମାତୃତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ସମଲୈଙ୍ଗିକ ଦମ୍ପତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ହେଇପାରେ ବା ମହିଳା ହେଇପାରେ, ତା ଛଡ଼ା ବିଧବା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତୃତ୍ୱ ଓ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏନ୍ଆର୍ଟି ବା ନ୍ୟୁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯାହା ପ୍ରଜନନରେ ଜୈବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରଜନନର ଜୈବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ପ୍ରଜନନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ହେଉଛି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ଏନ୍ଆର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଜନନ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ, ଆସିଷ୍ଟେଡ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ। ଏନ୍ଆର୍ଟି ନ୍ୟୁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆସିଷ୍ଟେଡ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଆସିଷ୍ଟେଡ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଏଥିରେ ଡାଇଫ୍ରାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ନିରୋଧ ଭଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପକାରୀ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡାଇଫ୍ରାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ନିରୋଧ ପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପକାରୀ ଇଣ୍ଟରଭେନସିଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ହରମୋନ ବ୍ୟବହାର ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଏହା ପ୍ରାକ୍ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଓ ଶିଶୁ ଜନ୍ମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା
गर्भधारण संभव हुए ताहाकू गर्भधारण संबंधी प्रजुक्ति विद्या कहा जाए। यह होची कृत्रिम बीर्जरोपण, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, सरोगासी, प्रजनन क्षमता औषध, भ्रूणदान और इनविट्रो फर्टिलाइजेशन इत्यादि। तेणु ये जो गर्भधारण संबंधी प्रजुक्ति विद्या टेक्नोलोजी बा प्रजुक्ति विद्या अंतर्भुक्त होता है। सेगुड़ा है आउ थे कौच कृत्रिम बीर्जरोपण, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, सरोगासी, प्रजनन क्षमता औषध, भ्रूणदान ये हूँ गोटे प्रकार प्रजुक्ति विद्या। भ्रूणदान माध्यम प्रजनन सुविधा, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हूँ आ गोटे प्रजुक्ति विद्या जहाँफल संतान लाभ करने संभव हुए। और ये जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन रे जितेबाला दंपति संतान जन्म करने को अक्षम होती सेतेबेले यही प्रणाली रे बा पद्धति रे संतान जन्म करने संभव होता है। ज्ञानयुक्त अध्ययन फोकस रे परिवर्तन, सांस्कृतिक उपाय जार अवैध 1970 दशक होता ज्ञानयुक्त संपर्क में सदा परिवर्तनशील प्रकृति उपर चाप सृष्टि करिछि। तेणु जो आम जो उपागम विषय आगु आलोचना करूँ, जन्म बा वंश संबंध एवं सांस्कृतिक उपागम, ये जो न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बा नूतन प्रजुक्ति विद्या सांस्कृतिक उपागम उपर चाप सृष्टि करछि। कारण संतान जन्म एवं ज्ञानयुक्त संपर्क सृष्टि करिबारे ये एक नुआ अध्याय को जोड़ी देछि। विगत वर्ष गुड़िक प्रजुक्ति विद्या आधारित प्रजनन पद्धति रे विकास द्वारा यह अधिक त्वरान्वित होइछि। अर्थात आगु जो सांस्कृतिक उपागम थिला, सांस्कृतिक उपागम परे जो नूतन प्रजुक्ति विद्या आसिला ताहा पुरातन सांस्कृतिक उपागम रे परिवर्तन आनिछि। एवं विगत वर्ष गुड़िक प्रजुक्ति विद्या आधारित प्रजनन पद्धति यह प्रक्रिया को त्वरान्वित करिछि। यह ज्ञानयुक्त अध्ययन रे नुआ आयाम गुड़ी को अंतर्भुक्त करिछि। अर्थात ज्ञानयुक्त अध्ययन रे आगु जो आयाम गुड़िक थिला, जो आयाम गुड़िक विषय आम आगु आलोचना करूँ, जहाँ मुझे कहली जे वंश हो बा आलियांस बा संबंध हो बा सांस्कृतिक उपागम, ता सहित यह एक नूतन उपागम को जोड़ी देछि कोथरे ज्ञानयुक्त अध्ययन रे। सेथिपाई कहुछि जे ज्ञानयुक्त अध्ययन रे नूतन आयाम गुड़ी को अंतर्भुक्त करिछि कि न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बा नूतन प्रजुक्ति विद्या। परिवार एबे एक जैविक होई रही नाही, बरं परिवार वंशगुण और प्रजुक्ति विद्या द्वारा परिभाषित होउछि। गर्भाधान, गर्भाविधि और प्रसव इत्यादि को अलगा करा जाई पारुनथिला, किंतु प्रजुक्ति विद्या फल एगुड़ी को परस्पर ठारू पृथक करा जाई पारुछि। अर्थात गर्भाधान ठारू गर्भाविधि को अलगा करी कल्पना करा जाई पारुछि, से भली प्रसव को मध्य कल्पना करा जाई पारुछि। एनआरटी जन्म ठारू गर्भधान को अलगा करी देछि। मातृत्व अर्थर पुनर्परिभाषितकरण, ये जो न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बा प्रजनन प्रजुक्ति विद्या फल मातृत्वर अर्थ रे परिवर्तन
घटी। आगुरी मातृत्व को जो भाव में परिभाषित कर बर्तमान परिवर्तन घटी। प्रजनन प्रजुक्ति विद्या मातृत्व अर्थ को परिवर्तित कर पूर्वर मातृत्व सांस्कृतिक और आईनगत रूपे प्रतिष्ठित होबार देखा जाउथिला। आगुरु मातृत्व काहा पर प्रतिष्ठित थिला? सांस्कृतिक और आईनगत दिग पर प्रतिष्ठित थिला। वर्तमान मातृत्वर एक नूतन वैधिकरण निमंते प्रजनन प्रजुक्ति विद्या अनुमति देछि। तेणु संतान जन्म करिबार जो आगुरु वैधता थिला एबे मध्य नूतन प्रजुक्ति विद्या फल से वैधता मिलुछि। तेणु मातृत्वर एक नूतन वैधकरण निमंते प्रजनन विद्या अनुमति देछि। एहा प्रतिमानीय परिवार मॉडल प्रति आह्वान सृष्टि करिछि। नूतन प्रजुक्ति विद्या जो परिवार संबंध रे हमर जो प्रतिमान थिला, जहाँ समाज रे जो प्रतिमान प्रचलित थिला, से प्रतिमान अनुसार परिवार गठित होइथिला बा गठन होइथिला। किंतु ये जो प्रतिमानीय परिवार प्रति ये नुआ मॉडल आह्वान सृष्टि करिछि। तेणु यह स्पष्ट जे शिशु पर केवल जन्म देवार अधिकार द्वारा मातृत्व परिभाषित करा जाई परिबो नाही। तेणु मातृत्व परिभाषित करिवा पई हेले केवल सांस्कृतिक आधार को ग्रहण कले हबो नाही। ए नूतन प्रजुक्ति विद्या अनुसार मातृत्व को अलग प्रकार परिभाषित करा जाई परिबो। नूतन प्रजुक्ति विद्यार समाज शास्त्रीय प्रासंगिकता प्रजुक्ति विद्या पुरुषतंत्र एक विकल्प भाव में नूतन प्रजनन विकल्प पुरुषतंत्र परिप्रेक्षी उपयोगी अटे। कारण पितृतंत्र नारी को तार प्रजनन सामर्थ्य संदर्भ में परिसाधित करिथाए। एठी जो पितृतांत्रिक व्यवस्था हम कहूली पितृतंत्र ताहा नारीर प्रजनन सामर्थ्य संदर्भ में परिभाषित करिथाए। प्रजनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया भाव में देखा जाए एवं यही आधार में पुरुष माने प्रजुक्ति विद्या संबंधी हस्तक्षेप माध्यम रे नारी उपरे नियंत्रण जारी करती। पुरुषतंत्र को प्रोत्साहित करुवा नारीत्व सहित मातृत्व को समान करुवारु पुरुष को दोष दिया जाई आसुअछि। नारीवादी समालोचक माने नूतन प्रजनन प्रजुक्ति को नारीर शरीर लिंग विखंडन भाव में ग्रहण कर। तो नारीवादी समालोचक मान जो अच्छा जो मैंने पितृतंत्र को समालोचना करती से माने नूतन प्रजनन प्रजुक्ति विद्या को नारीर शरीर लिंग विखंडन भाव में ग्रहण कर। प्रजुक्ति विद्या रे नारीर पहुंच और यार नियंत्रण वुमेन एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी एक सकारात्मक मत है जे प्रजनन प्रजुक्ति विद्या महिला को सेमानकर प्रजनन क्षमता को नियंत्रण करने को साहाय्य करे। गर्भाधान समय और तरीका सेमानक इच्छा उपरे निर्भर करे। तेणु यह नारी मानक एक स्वाधीनता देछि बा तांको पसंद करिवार एक सुविधा देछि। तो प्रजुक्ति विद्या फल रे नारी केतेबेले गर्भधारण करिवो एवं किभଳି भाବରେ करिवो यह सेमानक एक सुविधा प्रदान करिछि। केतक व्यक्ति किंबा सामाजिक समूह नूतन प्रजनन प्रजुक्ति विद्या केतक निर्दिष्ट शर्त उल्लंघन करे बोली विचार करती। ये हूँ अन्य मानकर मत जे नूतन प्रजुक्ति विद्या प्रचलित विधि
बा नीति नियम को उल्लंघन करे बोलिक से माने विश्वास करती। केतक एकमत जे जो माने संतान धारण करिबारे समस्यार सम्मुखीन होती सेमानक निमंते प्रजुक्ति विद्या उपयोगी। अन्य मानक मतरे प्रजुक्ति विद्या फल मानव प्रजननर प्राकृतिक आधार प्रभावित होइछि। तेणु प्रजुक्ति विद्या रे नारीर पहुंच और यह उपर नियंत्रण रे दुई प्रकार मतामत रही। तीन रे पसंद द्वारा परिवार गठन निमंते अनुमति दिए। तेणु जो नूतन प्रजुक्ति विद्या पसंद द्वारा परिवार गठन करने अनुमति दिए, अर्थात यह निज पसंद रे जड़े परिवार गठन कर से प्रकार सुविधा को नूतन प्रजुक्ति विद्या प्रदान करिଥାଏ। पसंद द्वारा परिवार हेउची वास्तवतार एक उदाहरण जे जीव विज्ञान ज्ञानचित्र एकमात्र परिभाषितकारी वैशिष्ट्य नुहे। रक्त और वैवाहिक संबंध बिना लोक माने ज्ञानती होई पारिबे। तेणु यह स्पष्ट जे विवाह व्यतीत बा रक्त संबंध बिना ज्ञानचित संपर्क स्थापित करा जाई पारिबो बा बिना वैवाहिक और रक्त संपर्क रे लोक माने ज्ञानती हेई पारिबे। एथिपाई जे नूतन प्रजनन प्रजुक्ति विद्या ए संबंध रे सुविधा प्रदान करिथाय। परिवार और ज्ञानचित उपरे नूतन प्रजनन प्रजुक्ति विद्यार नकारात्मक प्रभाव। तेणु ये जो नूतन प्रजुक्ति विद्या ताहार जे केवल उपयोगिता अच्छी ता नुहे, यह परिवार और ज्ञानचित को नकारात्मक भाव में प्रभावित करिथाय बा परिवार ज्ञानचित उपरे नूतन प्रजुक्ति विद्यार नकारात्मक प्रभाव रही था। प्रजनन प्रजुक्ति विद्या औचित्य संबंध में वितर्क जो निश्चित भाव में कहुई पार जे एक समाज रे समस्त सदस्य यह सकारात्मक अर्थ रे ग्रहण करिवे। यही प्रजुक्ति विद्या मानव शरीर को सामग्री भाव व्यवहार करी पुंजीवाद को उत्साहित करुथिबार विचार करा जाए। यह होची अनैतिक, यह प्रजनन उद्योग को जन्म देछि। यह होची एक अनैतिक कार्य, यह होची गोटे नकारात्मक प्रभाव प्रजनन प्रजुक्ति विद्यार, नूतन प्रजनन प्रजुक्ति विद्यार। यह मध्य प्रजनन उद्योग को जन्म देछि। यह एक उद्योग रे परिणत होइछि जो थारे अंडा, शुक्राणु, गर्भाशय और भ्रूण परी मानव प्रजनन अंग क्रय विक्रय करा जाई पारुछि। यह निश्चित भाव में प्रजनन उद्योग को जन्म देछि। प्रजनन प्रजुक्ति विद्या माध्यम रे संतान जन्म हेबा नूतन प्रश्न गुड़ी को उत्थापन करिछि। प्रजनन रो सार्वजनीन अर्थ अछि कि कौन संयुक्तता को निर्माण करिथाय। प्रजनन क्षेत्र में प्रजुक्ति विद्यार अग्रगति सत्वे यार व्यवहार केतक प्रतिक्रिया रही। तेणु नूतन प्रजुक्ति विद्या बा न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, नूतन प्रजनन प्रजुक्ति विद्या रो उभय उपयोगिता और उपकारिता रही। यह जो मानक उपयोगी से हेले से दंपति जो मानकर संतान जन्म कर क्षमता न थाए। तेणु यह से उपयोगी,
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନତୀତ ଓ ପରିବାର ଉପରେ ଏହା ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 11ର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା। ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ को आलोचना करिबा। ये होची यूनिट 12 DSOC 109 रो सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप इरो शेष एकक एवं से शेष एकक बा यूनिट 12 को वर्तमान हमें आलोचना करिबा। यूनिट 12 रो विषय वस्तु हला लोकप्रिय संस्कृति और ज्ञानतीतर प्रतिरूप प्रदान करिबा। पॉपुलर कल्चर एंड रीइमेजिन किनशिप। लोकप्रिय संस्कृति कौन एवं ज्ञानतीत सहित यार संपर्क कौन। लोकप्रिय संस्कृति किभଳି ज्ञानतीतरे परिवर्तन आनिछि इत्यादि इत्यादि। 19 शताब्दीर मध्य भागरे सामाजिक विज्ञान गुड़िकरे लोकप्रिय संस्कृति शब्द एक बहुल व्यवहृत शब्द होईगला। तेणु जो लोकप्रिय संस्कृति जहाँ इंग्राजी पॉपुलर कल्चर कह जाए ताहा 19 शताब्दीर मध्य भागरे एक बहुल व्यवहृत शब्द होईगला। नृविज्ञान रे लोकप्रिय संस्कृति अध्ययन कला संस्कृति और लोक साहित्य सहित संबंधित। अर्थात लोक साहित्य संगीत और कला उपरे यह आधारित। लोकप्रिय संस्कृति कहले यह होची गण संस्कृति बा होची लोक संस्कृति। तेणु लोकप्रिय संस्कृति रे कला संगीत और लोक साहित्य इत्यादि अंतर्भुक्त होता है। ये यूनिट उद्देश्य होची ज्ञानतीत अनुष्ठान रे देखा देथिबा परिवर्तन गुड़ी को बुझिबा। लोकप्रिय संस्कृति कौन। लोकप्रिय संस्कृति अर्थ कौन बुझिबा पूर्व आमे संस्कृतिर अर्थ जानिबा आवश्यक बा लोकप्रिय संस्कृतिर अर्थ कौन बुझिबा निमंते संस्कृतिर अर्थ बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। पूर्वपुरुष मानक ठारू मानव जो सब सामाजिक मूल्यबोध प्रतिमान विश्वास इत्यादि को उत्तराधिकारी सूत्र पाई थाए सेगुड़िकर समष्टि रे मानव समाजर संस्कृति गठित होता है। तेणु समाज होची सामाजिक मूल्यबोध प्रतिमान प्रथा परंपरा लोकरीति लोकनीति एरा समष्टि। अन्य अर्थर कहले संस्कृति होची एक शब्द जो मूल्यबोध प्रतिमान विश्वास प्रथा परंपरा इत्यादि सम्मिलित होता है। समस्त शिक्षा व्यवहार प्रणाली चालीचलन ढंग प्रथा परंपरा प्रभृति समष्टि संस्कृति अटे। तो संस्कृति होची शिक्षा व्यवहार प्रणाली चालीचलन ढंग प्रथा परंपरा इत्यादि समष्टि होची संस्कृति। व्यक्ति माने समाजर सदस्य भाव में एगुड़ी को सामाजिकरण प्रक्रिया माध्यम शिखि था। तेणु जे नुआकरी समाज को आसती शिशु इत्यादि और परवर्ती समय से माने এই प्रथा परंपरा रीति नीति चालीचलन को सामाजिकरण प्रक्रिया माध्यम शिखि था। सामाजिकरण होची प्रक्रिया जो प्रक्रिया माध्यम समाजर सदस्य माने विशेषकर शिशु माने
ଏହାକୁ ସମାଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ, ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଇନ, ପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସମାଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଉପସଂସ୍କୃତି ଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଉପସଂସ୍କୃତି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରି ନିଆଯାଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏଠି ଉପସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜରୁ ସମାଜ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି, ମଣିପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପସଂସ୍କୃତିର ଉଦାହରଣ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ସମୂହ କିମ୍ବା ସମୁଦାୟର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଭ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସାହିତ୍ୟ ପରି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧାରଣା ବା ଜ୍ଞାନର ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ସମୁଦାୟର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ବା ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ସମୂହ କିମ୍ବା ସମୁଦାୟର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଭ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀଦାର, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସାହିତ୍ୟ ପରି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧାରଣା ବା ଜ୍ଞାନର ଚିତ୍ରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଗଣ ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଗଣ ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ। এই ଯେଉଁ ସିନେମା ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣ ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିନେମା, ଟେଲିଭିଜନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍କୃତି ଯଥା ଆଇନଗତ ସଂସ୍କୃତି, ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ତାହା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ଏଲିଟ୍ ମାନଙ୍କ
संस्कृति भाव परिचित एवं लोकप्रिय संस्कृति साधारणतः गण संस्कृति बा लोक संस्कृति सहित संबंधित एवं यह साधारण लोकों संस्कृति बोलिकी कहा जाए। आधुनिक जुग रे लोकप्रिय संस्कृति मनगढ़ा साहित्य को दर्शाई थाए। जो मनगढ़ा साहित्य उदाहरण टेलीविजन चलचित्र पुस्तक इत्यादि। सनचनादि सिद्धांत अनुसार गण संस्कृति किंवा लोकप्रिय संस्कृति प्रभावशाली आदर्श को दुर्बल कर दिए। तेणु जो स्ट्रक्चरल जिम अच्छी स्ट्रक्चरलिज्म बा संरचनावादी सिद्धांत अनुसार गण संस्कृति किंवा लोकप्रिय संस्कृति प्रभावशाली आदर्श को दुर्बल कर दिए। तेणु समाज जो प्रभावशाली आदर्श थाए ताहाकू लोक संस्कृति दुर्बल कर दिए। ज्ञानतीत को पुनः प्रतिरूप प्रदान करिबा रीइमेजिन किनशिप। भारत रे परिवार व्यवस्था अद्वितीय बा अनन्य अटे। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था पृथ्वी रे देखा जाउथिबा पारिवारिक व्यवस्था ठारू भिन्न अटे। सेथिपई कहा जायछि बा उल्लेख करा जायछि जे भारत रे परिवार व्यवस्था अनन्य अटे। एठारे संस्कृति जनसंख्या अंचल और धर्म इत्यादि रे विविधता देखा जाए। एठी संस्कृति रे विभिन्नता थाए, एठी जनसंख्या रे विभिन्नता थाए, एठी अंचल और धर्म इत्यादि रे विभिन्नता थाए। भारत रे एकक परिवार, यौथ परिवार और वर्धित परिवार देखा जाए। भारत रे पितृरैखिक परिवार साधारण तो देखा जाए बा भारत रे पितृरैखिक परिवार साधारण अटे। जेतेबेले कि केतक निर्दिष्ट समुदाय रे मातृरैखिक परिवार मध्य देखा जाए। उदाहरण है केरल नायर एवं उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक गारो और खासी जनजाति मान मध्य मातृरैखिक परिवार देखा जाए। तेणु भारत रे पितृरैखिक परिवार साधारण भाव में देखा जाए, किंतु उत्तर पूर्व भारत रे मातृरैखिक परिवार मध्य देखा जाए। एवं जहाँ मु कहली केरल नायर मान भितर एवं उत्तर पूर्व राज्य रे बास करुवा गारो और खासी जनजाति मध्य यह देखा जाए। विवाह अनुष्ठान विवाहर आकार और प्रकार भेद निर्धारित करिथाए। अर्थात विवाहर आकार एवं यार प्रकार भेद विवाह अनुष्ठान द्वारा निर्धारित होता है। एक सामाजिक कारक भावे जाति अब्याहत रही। आंतर्जातीय विवाह साधारण हो जाए। ये हूँ ज्ञानतीत को पूर्ण रूप प्रदान किभଳି भाव करा जायछि से संबंध रे आलोचना। तेणु विवाह अनुष्ठान रे विवाहर आकार और प्रकार भेद निर्धारित करिथाए। एक सामाजिक कारक भावे जाति अब्याहत रही। आंतर्जातीय विवाह साधारण हो जाए। आंतर्जातीय कहले जाति जाति भितर नुहे, दुईटी जाति मध्य विवाह को आंतर्जातीय विवाह बोलिक कह जाए। तेणु आग तुलन में आंतर्जातीय विवाह अधिक हो जाए। तेणु आंतर्जातीय विवाह साधारण हो जाए बोलिक कहा जाउछि। भारतीय विवाह तथापि देखा मिलूँ जदिओ यह विशुद्ध रूप व्यवस्था विवाह नुहे। भारतीय विवाह एबे आउ विशुद्ध रूपे व्यवस्था विवाह हो रही ना। अर्थात आगुरी भारतीय समाज रे विवाह क्षेत्र में पुओ झील से अभिभावक माने विवाहर व्यवस्था करुले, जहाँ को आम अरेंज मैरेज बोलिक कहूँ।
किंतु एबे विशुद्ध व्यवस्था विवाह देखा मिलू ना। तार कारण हूँ उदारीकरण परे परे जड़े निजर जीवन साथी पसंद करने गुरुत्वपूर्ण हो जाए। तेणु आगपरी पितामाता माने जो भली पुओ झीर बहार व्यवस्था करुले पुओ झील बह करने पितामाता दायित्व थिला। एबे से परिवर्तन होइछि। विशेषकर उदारीकरण पर जड़े निजर जीवन साथी पसंद कर वर्तमान गुरुत्वपूर्ण हो जाइछि। पितृतांत्रिक परिवार में मध्य संकट देखा देइछि। विलंबित विवाह और विवाह व्यतीत भागीदारिता परिवार संरचना परिवर्तित कर देइछि। एबे विवाह से पुओ हंतु बा झील हो विवाह विलंब हो, विवाह बयस विलंब हो, विलंबित विवाह बोलिक कह जाए। और विवाह व्यतीत भागीदारिता कहले बिना विवाह जो पार्टनर होउचंती यहाँ द्वारा परिवार संरचना परिवर्तित होइछि बा संरचना रे परिवर्तन देखा देइछि। सांप्रतिक भारत रे महिला स्थान रे उन्नति घटी। महिला मान स्थान रे एबे उन्नति देखा देइछि। परिवार और समाज रे सेमानक जीवन मध्य उन्नत होइछि। परिवार आय रे सेमानकर अवदान रहुछि एवं निष्पत्ति नेबा प्रक्रिया रे सेमानकर भूमिका रहुछि। महिला मानकर जीवन रे उन्नति होइछि, अर्थात आग अपेक्षा सेमानक जीवन एबे उन्नत। आगरू महिला माने पारिवारिक निष्पत्ति रे अंशग्रहण करि पार नथिले बा सेमाने पारिवारिक निष्पत्ति रे भाग नेबा पई सेमानकर अधिकार नथिला। परिवार आय रे सेमानकर एबे अवदान रहुछि एवं सेमाने निष्पत्ति नेबा प्रक्रिया रे मध्य भूमिका ग्रहण करुछथि। जे कोनोसी समाज रे ज्ञानचित्तर एक गुरुत्वपूर्ण उपादान होउछि परिवार। एबे आमे परिवार विषय आलोचना करिबा। सामाजिक अर्थनैतिक कारणरू परिवार रे परिवर्तन देखा देइछि। अर्थात परिवार आगरू जो भली भाव में थिला एबे आउ से भली भाव में देखा मिलू ना। परिवार रे विभिन्न प्रकार परिवर्तन है एवं विभिन्न कारणरू परिवार रे परिवर्तन देखा देइछि। एवं विशेषकर अर्थनैतिक परिवर्तन फल परिवार रे परिवर्तन देखा दौछि। निकट रे परिवार गवेषक माने पारिवारिक हिंसा जथा शिशु जीवन साथी दुर्व्यवहार इत्यादि विषय उल्लेख करिसेंति। परिवार गवेषक मानक मतरे परिवार रे बे शिशु दुर्व्यवहार जीवन साथी अर्थात स्वामी स्त्री मध्य परस्पर परस्पर को दुर्व्यवहार यारी उपरे परिवार गवेषक माने अध्ययन करि आछथि। एबे पारिवारिक हिंसा व्यापक अटे। केवल माँ परिवार केवल माँ परिवार केवल पिता परिवार समलैंगिक परिवार वृद्धि पाइबारे लागिछि। ए जो सब कहली जो परिवर्तन देखा देइछि, प्रथमे पारिवारिक हिंसा, जहाँ कि
परिवार गवेषक माने अध्ययन करि आछुछन्ति। पारिवारिक हिंसा व्यापक एवं यह वृद्धि पाइबार लगी। एबे केवल माँ परिवार, केवल पिता परिवार, समलैंगिक परिवार वृद्धि पाइबार लगी। केवल माँ परिवार कहले जो परिवार केवल माँ था, पिता न था। केवल पिता परिवार जो परिवार में केवल पिता था एवं कौन कारण माँ न था। छड़ा समलैंगिक परिवार, समलैंगिक परिवार पुरुष हो पारे बा महिला समलैंगिक परिवार हो पारे। औद्योगिकरण और सहरीकरण फल यौथ परिवार विघटित होइछि। यौथ परिवार स्थान रे एकक परिवार गुड़िक सृष्टि होछि। तो ये होछि बड़ परिवर्तन। आगरू विशेषकर यौथ परिवार थिला भारतीय समाज रे बा पूर्व भारतीय समाज यौथ परिवार उपर आधारित थिला, किंतु औद्योगिकरण फल सहरीकरण फल यौथ परिवार विघटित होउछि। यौथ परिवार स्थान रे एकक परिवार गुड़िक सृष्टि होउछि, अर्थात यौथ परिवार परिवर्ते एकक परिवार गुड़िकर सृष्टि होउछि। आरंभिक विश्व शताब्दी रे परिवार रे अनेक परिवर्तन देखा देछि। औद्योगिकरण बाद सेवा और सूचना अर्थनैतिक व्यवस्था दिगरे रूपांतरण करिछि। ये जो औद्योगिकरण परे परे जो सेवा और सूचना अच्छी सूचना व्यवस्था, सेवा और सूचना अर्थनैतिक व्यवस्था दिगरे रूपांतरण होउछि। डाक्तरी विज्ञान रे प्रगति फल जनसंख्या और मृत्यु संख्या ह्रास पाउछि। डाक्तरी विज्ञान फल मृत्यु संख्या और जनसंख्या उभय ह्रास देखा मिलूँ। शिक्षा स्तर रे उत्थान देखा मिलूँ। शहरीकरण, स्थानांतरण और औद्योगिकरण प्रक्रिया भारतीय परिवार को प्रभावित करिछि। ये होची केतक गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया जहाँ भारतीय समाज को एवं परिवार को प्रभावित करिछि। भारतीय शहरी परिवार अनेक प्रसंग रही। सेगुड़िक है वैवाहिक विवाद, विच्छेद, विवाह विच्छेद इत्यादि। आउ थे कहूँ भारतीय शहरी परिवार रे अनेक प्रसंग देखा नुआ नुआ इश्यू। सेगुड़ाक हूँ वैवाहिक विच्छेद, विच्छेद सेपारेशन, डाइवोर्स, विवाह विच्छेद इत्यादि। तेणु शहरी परिवार यही प्रसंगर सम्मुखीन होउछि। ये हला शहरी परिवार बा शहर गुड़िक देखा जाउथिबा परिवार प्रसंग। पुणी ग्रामीण परिवार रे लिंग भूमिका रे असमानता देखा जाउछि। तेणु ग्रामीण परिवार रे बा ग्रामांचल जो परिवार देखा जाउछि सेठी लिंग भूमिका रे असमानता देखा जाउछि। लिंग भूमिका कहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बा जेंडर डिस्पारिटी, जो थिरे तारतम्य देखा जाउछि। लोकप्रिय संस्कृति और ज्ञानतीत को पुनः प्रतिरूप प्रदान करवा, ये हूँ एक टॉपिक
जो आमे लोकप्रिय संस्कृति और ज्ञानतीत को पुनर्प्रतिरूप प्रदान करमिति ता विषय आम आलोचना करवा। कला विश्व संस्कृतिर सर्वोत्तम उपक्रम अटे। समाधित आशा संचित स्मृति कोमल अनुभूति निमंते मु एहाकू भल पाए। यह आत्मा प्रतिदिन जीवनर धूली को धोई दिए। ये होची पाब्लो पिकासोंकर एक कोटेशन बा उद्धरण। कला विश्व संस्कृतिर सर्वोत्तम उपक्रम अटे। यह थिला पाब्लो पिकासोंकर कोटेशन। पिकासो उपरोक्त उद्धरण रे कला विषय कहती जे यह केवल कला नुहे, यह हेउची लोकप्रिय संस्कृति। यह हेउची लोकप्रिय संस्कृति जहाँ बृहत्तर समाज को प्रतिफलित करिथाए। निज निज समय निर्मित कहानी को आमे प्रासंगिक करि परिबा। 1990 एवं 1960 दशकर अधिकांश चलचित्र भारतीय बृहत परिवार को चित्रित करिछि। तेणु 1960 एवं 90 मसीह जो चलचित्र भारत रे निर्मित होइतिला से चलचित्र भारतीय बृहत परिवार को चित्रित करिछि, जेउथिरे शेषरे भाई मानक मध्यरे विवादर समाधान होइछि एवं परिवार खुशी रे बास करिछन्ति। तो ये होछि 1960 एवं 70 दशकर चलचित्रर गोटे दिग। एही जुगरे अधिकांश चलचित्र रे परिवारर इच्छा गुरुत्वपूर्ण थिला। 1970 दशक रे हिंदू चलचित्र रे हिंसा समाजर परिवर्तन यार निराशा उपरे आधारित थिला। शोले चलचित्र रे एक विधवा चरित्र थिला एवं जया बच्चन एही चरित्र रे अभिनय करिथिले। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मध्य एक जटिल रोमांस थिला। तार कारण होची पारंपरिक प्रतिमान अनुसार हिंदू समाज रे विधवा पुनर्विवाह साधारण नथिला। एटा कॉमन नथिला। विधवा मानको पुनर्विवाह पई सहजर अनुमति मिलु नथिला। एही चलचित्र रे पारंपरिक प्रतिमान को स्पर्श करा जाय नथिला, कारण चलचित्र रे अमिताभ बच्चन कर शेष रे मृत्यु हो जायतिला। तेणु एठी भिन्न भिन्न चरित्र रे थिबा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मध्य विवाह संभव हो पारि नथिला। 1981 मसीहा आउ गोटे चलचित्र होची सिलसिला। अनेक लोकप्रिय चलचित्र रे पूर्वतन प्रेमी जुगल मध्य विवाहतर संबंध उपरे आधारित थिला। जे सिलसिला रे जो दी जन नारी और पुरुष चरित्र रे थिले से माने पूर्वरु प्रेमी जुगल थिले, किंतु शेषरे सेमानक भितर प्रेम संपर्कर परिसमाप्ति घटी। विवाह होची एक बंधन जहाँकि छिन्न होगा असंभव। यह थिला एही चलचित्रर संदेश।
1980 ଦଶକରେ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନେକ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। 1990 ଦଶକରେ ଉଦାରୀକରଣବାଦ ସମାଜରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଲା। ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। 1990 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ଉଦାରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ତା ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଏହା ସହିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତା ହେଉଛି ଦୀପା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଦୀପା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମଲୈଙ୍ଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରିତ ସମଲୈଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ସମଲୈଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସମାଜରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୋପାନ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମାଜ, ପରିବାର, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସମାଜର ପରିବାର, ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ। ଏତିକିରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ।